Decir que él es un poeta de hindi, profesor jubilado. ¿Sabes lo que quiere decir jubilado? Jubilado quiere decir retired. Jubilado. Él se ha especializado en lengua española, en culturas latinoamericanas y sobre todo se ha dedicado a traducir del español al hindi. Y volveremos, el tema es justamente sobre esto, vamos a hablar de las traducciones del español al hindi. Él fue investigador visitante en México en 1981-1982 en el Colegio de México. El Colegio de México es una de las instituciones de más prestigio del mundo español y tienen estudios de hindi, de sánscrito, de muchas lenguas de todo el mundo, ¿no? Y ahí estuvo el profesor Nautial, haciendo su práctica. Él ha sido también felicitado por muchas embajadas latinoamericanas, como Panamá, Colombia, Venezuela, Perú. Y él recibió el prestigioso premio literario de la revista hindi Paki, el Shabda Sadat Anuvat Samman. Pero lo realmente interesante es que él ha editado varias revistas de poesía, especialmente Pragati India, al español. Es el editor de la única revista en hindi que hay sobre García Lorca. Él la publica, es realmente un gran honor. Es una revista muy interesante, realmente, porque acerca nuestro gran poeta García Lorca, lo acerca al hindi. Y son traducciones directas del español al hindi. De hecho, él está preparando ahora, con ocasión del aniversario, 125 aniversario, está preparando una antología con más de 70 poemas de Lorca traducidos al hindi. Es una oportunidad única para que os podáis conocer la literatura de un personaje tan importante como García Lorca. Bien. Él también es editor de Spanish Hindi Dictionary, muy interesante, nos gustaría mucho verlo. Y también ha traducido a los mayores poetas en español, como Lorca, Rafael Alberti, del cual también hablamos aquí hace poco, Miguel Hernández, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, César Vallejo, Gabriel Mistral, Nicolás Guillén, Nicanor Parra, etc. Y me gustaría decir que él tiene pues más de unos cuantos libros traducidos. Especialmente me gustaría nombrar José Martí Kachakavitaen, México का संक्षिप्त इतिहास, बुस्कोन की जीवन कथा. मुझे लगता है कि यहाँ भी मिलेगा. बुस्कोन की जीवन कथा बहुत सुंदर है, सबको पढ़ना पड़ेगा. बहुत अच्छा है ना, थोड़ा मुश्किल है. मैं आपका अनुवाद तो बनारस में पढ़ा था बहुत समय पहले, इतना अच्छा लगा. इतना मुश्किल काम है ना, आपको एक बार आप देख लीजिए. एक कॉपी तो यहाँ, एक प्रति यहाँ की बुस्कोन की जीवन कथा, और फिर Pablo Neruda का Ruko o Priti. Él tiene también un artículo sobre Neruda Hridaymen, y también ha traducido un autor catalán. Catalán es una lengua de España, como sabéis, y ha traducido a uno de los autores catalanes más importantes, que se llama Ramon Llull, al hindi también. Le agradecemos mucho porque está dando a conocer realmente tantos escritores clásicos de nuestra literatura, y no solo en español, sino también en otras lenguas españolas, como el catalán. Y también tradujo un libro paraguayo llamado El invierno de Gunther Eknam. Hindi में होगा Gunther y Sardía, ¿no? Esta es una novela de Paraguay,
¿Sabéis dónde está? Paraguay, Sí. en América. Y esta es una novela que ha sido traducida a 8 lenguas en hindi. 8 lenguas en hindi. India. 8 lenguas indias, perdón. Él hizo la traducción al hindi, ha sido traducido al bengalí, al urdu, al marathi, al malayalam, kannada, punjabi, tamil y oriya. Bien, con esto les dejo. Ha hecho muchas más cosas en la antología de la poesía peruana, pero ahora sí que nos gustaría disfrutar de su charla en español con un poco de hindi, y creo que lo apreciarán mejor. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecido al director para invitarme aquí, porque es la... ¿Se ve? Sí, pero Sí. acérquelo más. Ah, Ahora. ¿Se oye? Bueno, estoy muy agradecido al director para invitarme aquí. Es la única oportunidad, la primera oportunidad de hablar con ustedes aquí. Me parece que son estudiantes, ¿no? Sí. Y no sé qué propósito tienen para estudiar la lengua española, ¿no? Pero me parece que también una persona o dos personas tienen interés en la literatura. La literatura española es una de las más lindas del mundo. Tienen casi 11 o más de 11 escritores que ganaron premio Nobel. Es una cosa tremenda. ¿Saben ustedes algunos de ellos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hay 11, bueno, tienen 20 países donde se habla español, ya saben. Entonces, no son de España solamente, hay otros escritores también de la América Latina. Desde 1975 estoy haciendo un poco de contribución a la literatura española y también a hindi, traduciendo de español al hindi directamente, y soy la primera persona en toda la India quien empezó un tipo de movimiento en la India, porque generalmente aquí teníamos una tradición ir por Washington o por Londres, siempre lo que traducen otros escritores de la India, siempre de inglés. No hay otra lengua para ellos. Es una lástima, creo que, porque entonces yo empecé una revista sobre el nombre de Lorca, Federico García Lorca. Se llama la revista Lorca. Bueno, primero es que me dijeron que no significa nada Lorca, pero yo tenía en la mente que Lorca, quien murió cuando tenía 38 años, y ahora es uno de los mejores poetas del siglo XX, uno de los mejores, y no hay, creo que no hay ninguna lengua en el mundo donde no se ha traducido. Por eso yo también pienso que Lorca nosotros podemos conocer bien, y empecé esta revista Lorca, se llama Lorca. Bueno, no pude continuar con la revista porque se necesita dinero para publicarlo. Entonces, después de unos
ejemplares, tuve que, parar la publicación por causa de dinero. Yo no tenía dinero. Tampoco cuando empecé a publicar la revista, yo no tenía ningún trabajo. Pero es la vida, así es la vida. Y ahora es el 125 año del nacimiento de Lorca. Y hay una colección, una antología sobre los poemas de los poemas de Lorca, quien va a salir pronto, probablemente en diciembre o en enero. Traducido 75 poemas de Lorca. Necesito un poco de agua. Sí, Room temperature. si es posible. Tengo Sí, 4 días. No te preocupes. Bueno, es que hablando de traducción en la India, hay muchos problemas, especialmente de literatura. Cuando se traduce, de español, hablo de español, al hindi, bengali, tamil, telugu, no hay diccionarios. La primera cosa es que necesitamos, porque por todas partes del mundo, si no hay diccionario, la literatura, es difícil traducir la literatura, ¿no? Y por eso hay unos... en vez de hablar la teoría, ¿se oye? Digo la situación del diccionario en nuestro país. Hay un autor quien compiló el diccionario, pero hay palabras en el diccionario que no tienen ningún sentido. Bueno, es un poco... ¿saben? Rose apple. Anybody knows? Here? No? Rose apple हिंदी में is rose apple एक पेड़ है, पेड़ होता है वो, उसका अनुवाद हिंदी में क्या नाम हिंदी में है, क्या होना चाहिए? पता नहीं गुलाबी से compilado un pequeño diccionario también, es de 5.000 palabras, no más, porque el gobierno no quiere que, no sabe que hay más palabras de 5.000. Bueno, en este diccionario, como ya les dije, Rose apple का अनुवाद दिया हुआ है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सब जानते होंगे। इतना ही नहीं, उसका एग्जाम्पल भी दिया है डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको लगेगा, आप कम से कम आप लोगों को, वो तो खैर शब्दकोश बनाते थे तो उनको जानना चाहिए था। इसका जो एग्जैक्ट जो उदाहरण उन्होंने दिया है, पहाड़ पर गुलाब जामुन उगाए जा रहे हैं। Have you ever seen gulab jamun on trees? No. This kind of dictionary work we have. Not only this, I'll give you some more examples. There is another dictionary
where there is a word akarmanya. Akarmanya. You are the Sanskrit scholar, so you know more. अकर्मण्य एक शब्द है, हिंदी में जानते होंगे आप लोग? कितने लोग जानते हैं अकर्मण्य? नहीं जानते? आक्रमण नहीं, बताइए क्या है अकर्मण्य का? वो आक्रमण नहीं, अकर्मण्य। अकर्मण्य उसका अर्थ आप जानते हैं क्या? नहीं। ये तो संस्कृत है ना। अकर्मण्य का मतलब होता है जो आइडल, जो कुछ नहीं करता है, बेकार है ना, ये अकर्मण्य है। तो उसका अर्थ तो दिया है जो दिया है, उसके बाद उसका उदाहरण भी दिया है। और आप लोगों को शायद बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। उदाहरण है, तुम बाजार से कैसी अकर्मण्य सब्जी ला रही हो। कभी यूज़ किया आप लोगों ने? शादीशुदा तो है क्या कोई? वो नहीं है, लेकिन वैसे भी अकर्मण्य शब्द का इस्तेमाल हमने कभी सुना नहीं अपने। मैं उम्र हो गई 75, लेकिन ऐसा इस्तेमाल हमने नहीं सुना है। कैसे उन्होंने ये उदाहरण दिया? नहीं, पर सब्जी के लिए नहीं इस तरह का उदाहरण कभी नहीं सुना। ये कौन सा शब्दकोश है? ये बहुत बड़े नाम है जो शब्दकोश ने जिन्होंने इसको बनाया है, और उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वालिटी डिक्शनरी की जो है, इसके बाद में और आपको बताऊँ, एक और है प्रशासनिक शब्दकोश, जो गवर्नमेंट में जो डिक्शनरी यूज होती है ऑफिसर्स के लिए। तो उसमें एक वर्ड है श्रम पीड़ा। श्रम जानते होंगे आप लोग? श्रम मीन्स लेबर, मशक्कत, लेबर। श्रम पीड़ा। तो उसका जो शब्द दिया है, उसका जो अनुवाद दिया है डिक्शनरी में, लेबर पेन। लेबर पेन जानते होंगे आप लोग? प्रसूता जो होती है, जब बच्चा होता है तो जो पेन होता है उसको लेबर पेन कहते हैं। और ये श्रम पीड़ा का उससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह का काम हुआ है। ये तो बड़ी डिक्शनरी की बात बताऊँ। इसके अलावा मैं आपको जो अनुवाद हुए हैं मतलब एक मशीन नहीं किया जी, ये मशीनी अनुवाद होगा, लेकिन जब ये डिक्शनरी बनी तब मशीनें भी नहीं थी। तो ये कोई 40-50 साल पहले की बात है डिक्शनरी बनी। एक और मेरे एक मित्र हैं लीलाधर जगोड़ी, हिंदी के बहुत वरिष्ठ कवि हैं। तो उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ इतालवी में। ये खाली हिंदी में ही नहीं है, ये मजाक और लैंग्वेज में भी है, दुनिया की लैंग्वेज में है। होता है ऐसा, क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए, छपाने के लिए करते हैं ये काम, तो वो ऐसी गलतियां करते हैं। तो जिस महिला ने उनकी कविता का अनुवाद इतालवी में किया, इटालियन लैंग्वेज में किया, वो ये उस समय ये जगोड़ी जी लखनऊ में थे, तो वो लेडी आई, मैं भी जानता हूँ उनको, मेरी मित्र रही हैं वो इतालवी। तो उन्होंने जगोड़ी जी ने उनसे पूछा, उसमें एक शब्द था झांसा। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो आप लोग अक्सर देते हैं एक दूसरे को। तो ये शब्द उनकी एक कविता में है, झांसा। तो जगोड़ी जी ने पूछा कि भाई मुझे ये बताइए, झांसा का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा हाँ, ये क्या बात है, झांसी का पुल्लिंग झांसा। अब उन्होंने झांसी जाना हुआ, तो झांसी एक जगह, एक शहर है, बड़ा शहर है यूपी का। तो अब उस इतालवी में वो क्या कैसे अनुवाद हुआ होगा, ये उसकी दशा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही ऐसा हुआ है, ये गजब हिंदी में ही हुआ है, और भाषाओं में भी ऐसा होता रहा होगा। क्योंकि छपास जिसे हम बोलते हैं कि छपना है, मुझे कागज़ में दिखना है, तो उसके लिए इस तरह की गलतियां बहुत आम हैं। तो ये मैं अपने अनुभव क्या बताता हूँ, मैंने जो अनुवाद किए हैं उसमें मेरे पास करीब 20 से अधिक शब्दकोश हैं,
जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ और जो बेहतरीन हो सकते हैं अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, जब नहीं समझ में आता है। मैं एक उपन्यास का अनुवाद कर रहा था, डॉक्टर पुजोल ने उसका जिक्र किया है। एक पैराग्वाई के एक राइटर हैं, लेखक हैं, जुआन मानुएल मार्कोस, बड़े राइटर हैं वहाँ के। उनका जो उपन्यास है वो दुनिया की 45 भाषाओं से ज़्यादा में छप चुका है, और पैराग्वाई का वो पहला उपन्यास है और पहली किताब है जिसका अनुवाद मैंने किया है। तो उस किताब में एक शब्द था लापाचो, मुझे नहीं पता था क्या है ये, और उसकी एक कहानी और है, मैं बता दूँ आप लोगों से, जिक्र कर ही दूँ, काफ़ी इनफॉर्मल सा लग रहा मुझे तो, कि वो जो शब्दकोश, वो जो उपन्यास है वो यहाँ पर किसी को अनुवाद के लिए दिया गया। वो इतना जटिल, इतना मुश्किल उपन्यास है कि 3-3 पेजेस में कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं। अब स्पेनिश में तो आपको पता ही है कि पहले एक प्रॉब्लम यह है कि हम वर्ब के साथ ही उसका मीनिंग होता है। आप सब्जेक्ट जो है, जैसे यो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग से चलेगा, लेकिन तब क्या होता है जब आप थर्ड पर्सन के लिए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आंवला। अब आंवला तो वो बोलती है, वो बोलता है, आप बोलते हैं, सबके लिए आंवला है। तो वहाँ अगर रेफरेंस आपके पास नहीं है कि ये बोलती है, ये बोलता है, तो आप अनुवाद सही नहीं कर सकते हैं। तो ये तो खैर हर भाषा की अपनी एक जटिलता है, अपनी दिक्कत है। लेकिन इस उपन्यास में जब ऐसी हालत थी तो एक साहब ने, जिनके संबंध अच्छे रहे होंगे कहीं से, तो उनके पास 1 साल से ये उपन्यास पढ़ा रहा, 1 साल से। और उनके यहाँ एक 200 वर्ष पैराग्वाई के इंडिपेंडेंस के थे, और उसमें वो किताब उनको पब्लिश करनी थी। तब किसी ने मेरा नाम बताया उनको, और फिर एम्बेसडर का फ़ोन मुझे आया, और पीए ने फ़ोन किया और कहा कि एम्बेसडर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं भी नहीं जानता था उनको, मैं जनरली एम्बेसीज वगैरह कहीं जाता नहीं हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, मैंने बताया कि आप कमाल के आदमी हैं। मैंने कहा कमाल का तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत कमाल किया होगा तो आप बताइए क्या। तो कहा नहीं, कि मैं यहाँ 7 वर्षों से हूँ दिल्ली में, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैंने कहा मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। तो कहने लगे कि भाई ये अमृतसर तो नहीं जाता है देखने की जगह जगह। मैंने बिल्कुल सही बात है, और मैंने कहा मैं भी अमृतसर को देखने नहीं जाता, बात बराबर। तो कहा नहीं नहीं, ये तो मजाक की बात हुई, मुझे आपसे बहुत काम है। मुझे बताइए क्या काम है। तो काम उनका ये था कि वो उपन्यास जिन प्रोफेसर के पास था, उन्होंने साल भर से उसको नहीं किया। उन्होंने जब वापस मांगना चाहा, उनके पास एक ही कॉपी थी एम्बेसडर के पास, तो वो उसको भी वापस नहीं दे रहे थे। तो इस सीमा तक चला गया कि उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा कि नहीं, ये हमारी किताब दे रहे हैं, नहीं उन्होंने अनुवाद किया, तो वो किताब वापस आई। खैर ये बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये अनुवाद करवाना है। मैंने कहा मैंने उपन्यास देखा भी नहीं है, कोई भी चीज़ है, उपन्यास है या पोइट्री है या कुछ, अगर देखेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलता कितना मुश्किल है, क्या है। तो मैंने कहा कि किताब तो मुझे दिखाई है। कि उनका कि आप एम्बेसी आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आता हूँ, आ जाऊँगा। तो मैं एम्बेसी गया तो उन्होंने किताब मुझे दिखाई, लेकिन अब 1 मिनट में आप उपन्यास 100-200 पेज का कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, देखना नहीं है, आज से आपको शुरू करना है। मैंने कहा कि क्यों। उन्होंने कहा कि ये हमारा अभी छप जाना चाहिए था, लेकिन नहीं छपा है। तो उन्होंने वो स्टोरी बताई, और इसलिए आपको ये 3 महीने में करना है। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं कर सकता, 3 महीने में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। 100-200 पेज, और मैं ऐसा करता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। तो कहा कि आपको तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत स्थिति ख़राब है, क्योंकि कमिटमेंट था वो नहीं पूरा हो रहा। तो मैंने कहा मैं लगता हूँ इस पर, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है कि 3 महीने में ख़त्म करूँगा, नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। मैं उस उपन्यास पे 4 बजे 5 बजे सुबह तक बैठ करके काम किया उसमें। वाइस
वाइफ मेरे सामने है, इन्होंने कहा कि मर जाओगे ऐसे तो वो मैंने किया। उसके बाद वो 4 महीने में, 3 महीने में नहीं हो चुका, 4 महीने में वो उपन्यास खत्म किया और वो फिर छपा भी, साहित्य अकादमी ने उसको छापा। उसमें ये शब्द था लापाचो। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसी डिक्शनरी में नहीं। मेरे पास, मैंने बताया कि मेरे पास 20 से अधिक डिक्शनरीज हैं, वो किसी में नहीं मिला। स्पेनिश तो स्पेनिश भी है, बड़ा शब्दकोश है, उसमें भी नहीं मिला। एक वैज्ञानिक शब्दकोश भी होते हैं कुछ, जो साइंटिफिक डिक्शनरीज, उसमें ढूंढा कि ये क्या है। वो अपने उसमें एक्सप्लेनेशन तो करते हैं कि ये उससे निकलता है, इससे पैदा होता है, ये सब जो मेरे मतलब का नहीं था। मुझे नहीं पता लगा कि ये है क्या। फिर मैंने एक बनारस से एक बड़ा शब्दकोश निकला था, उसमें मैंने देखा एक शब्दकोश बड़ा निकला हुआ था, तो उसमें था लोकाट। उसका लोकाट एक फल होता है, लेकिन मैं मतलब क्योंकि जब स्पेनिश की डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है मुझे, तो वो शब्द को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ नहीं, तो मैंने उसको, लेकिन कोई चारा भी नहीं था, तो मैंने उसको लोकाट दिया। अब मेरे जो छप गया, वो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ आपको, छप गया वो। उसके बाद वो उपन्यास छप गया और तो सौभाग्य से मेरी पहली विजिट पैराग्वाई को उन्होंने मुझे इनवाइट किया, पैराग्वाई में गया। तो वहाँ मैंने देखा सड़क के किनारे बहुत खूबसूरत पेड़ और झक फूलों से। तो मैंने वो जो ड्राइवर था उसको पूछा कि ये कौन सा पेड़ है? उसने लापाचो। मैंने कहा लापाचो ने मुझे बहुत घुमाया। वहाँ सड़क पे दोनों तरफ लापाचो के बहुत पेड़ हैं। तो उसके बाद अगला संस्करण, उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं। अगले संस्करण में मैंने उसको करेक्शन किया उसका, कि लापाचो को लापाचो ही रहने दिया, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं था उसके लिए, और उसके नीचे एक टिप्पणी दे दी कि ये ऐसा है। इसे बहुत जगह करना पड़ता है। तो ये एक मैं व्यक्तिगत जो आपको अनुभव बताऊँ। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि नेरुदा का मैंने एक संकलन निकला है, रुको पृथ्वी, साहित्य अकादमी ने छापा है। अभी ये लोरका का संकलन निकल रहा है, इसको साहित्य अकादमी, रजा फाउंडेशन एक है, अशोक वाजपेयी बहुत बड़े पोएट हैं हिंदी के, तो वो इसको छाप रहे हैं। तो ये मैं लोरका का स्पेशली मैं 1975 से ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और किताब अब छप पाई। इतना पेशेंस अगर लिटरेरी ट्रांसलेशन के लिए है तो है, नहीं तो काम ओवरनाइट भी होता है, और किस क्वालिटी का होगा ये। तो ये अभी छप रहा है, 75 घंटा इसमें है। इसमें मुझे बहुत लोरका अपने आप में स्पेनिश पोइट्री जितना मैंने किया है, सबसे जटिल पोइट, सबसे मुश्किल पोइट है लोरका। क्योंकि एक बार लोरका को ही पूछा किसी ने, क्रिटिक ने या किसने, कि इसका क्या अर्थ है, आपने ये लिख दिया, उसका मुझे नहीं पता। लोरका का ये रिटन है। उनका कि देखो कई सिचुएशंस ऐसी हैं कि हम पोएट सोचता है, उसको इमेजिन करता है और लिख दिया। अब मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, मैंने लिखा है तो लिखा है। लेकिन अब आप देखो कि आपको कितने अर्थ इसमें मिलते हैं, कितना अर्थ इससे निकलते हैं। तो इतने जटिल पोएट को ट्रांसलेट करना अपना में बहुत बड़ी सजा है या आनंद भी है, क्योंकि जब आपको उसका अर्थ मिलता है आपको, तो आपको बहुत खुशी भी होती है भीतर कि हाँ ये ठीक बात। तो ये चलता रहा। मैंने और भी किताबें की हैं, उसको उनकी जीवनी जो अभी डॉक्टर उसका ने आपको बताया, ये भी पहली किताब है जो स्पेनिश से हिंदी में छपी है, पहली किताब। इससे पहले कोई किताब नहीं थी स्पेनिश लैंग्वेज की जो स्पेनिश से अनुवाद हुआ हो उसका। तो ऐसा लोरका का संग्रह अब आ रहा है, इससे पहले कोई किताब नहीं आई है। स्पेनिश से हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजी से बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, छपे हैं। ऐसा ही नेरुदा का जो मैंने संकलन किया है, उससे पहले कोई अनुवाद नहीं आया था, अंग्रेजी से हुए हैं, स्पेनिश से बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैंने बाइलिंगुअल दिया, छपा है बाइलिंगुअल। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत रुचि होती है तो वो देख सकते हैं लाइब्रेरीज में। होसे मार्ती क्यूबा के बड़े
राजनीतिज्ञ भी हुए हैं और पोएट भी। उनका पहला संग्रह मैंने किया है, वो भी स्पेनिश से हिंदी में। ऐसे बहुत से जिनका मैंने पहले उससे पहले नहीं है। कुछ जैसे मिगेल एर्नांडेज का आपने नाम लिया, मिगेल एर्नांडेज को कोई जानता तक नहीं था, ये भी कोई कवि है। मैंने उसका उनका अनुवाद, जब मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, तो मैंने उनका अनुवाद किया। तो ये एक जुनून है, एक पागलपन है, जो भी समझे ये करते रहे हैं और कर रहा हूँ। इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है मुझे नहीं पूछिए। मैं चाहता हूँ कि एक मोनोलॉग नहीं, बिल्कुल उर्दू की कोई सी किताब का डायलॉग भी हो। उर्दू के कोई पोएट का, उर्दू के कोई पोएट का, पुर्तगाली, उर्दू 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 के पोएट का क्या? कोई ट्रांसलेशन? नहीं, उर्दू के पोएट का स्पेनिश में? हाँ नहीं, मैंने नहीं। उर्दू ना मुझे आती है, मतलब उर्दू वैसे जितनी आप लोगों को भी आती है, उससे शायद थोड़ा ज़्यादा मुझे आती है उर्दू से, लेकिन वो नहीं है ना, उर्दू का नहीं है। लेकिन उर्दू में ये जो उपन्यास, उर्दू में जो ये उपन्यास मैंने बताया आपको, गुलतेर की सर्दियाँ, ये उर्दू में भी छपा है। अच्छा, बताया ना भी, वो 8-10 लैंग्वेज में छप रहा है, छप गया है। तो उर्दू में भी सर्वांतेस में तो एक बहुत अच्छा अनुवादक है उर्दू से स्पेनिश में, वो मधुबन सर, वो बहुत अच्छा उर्दू में कविताएं लिखते हैं। वो उसको स्पेनिश की जानकारी भी उत्तम है। हाँ, और स्पेन में भी एक यहाँ पर एक बंगाली थे पहले, पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, सुब्रो है, हाँ, खुद भी पोएट हैं वो। और उन्होंने क्या नाम है उनका नाम? सुब्रो बनर्जी या सुब्रो बनर्जी। और स्पेन में एक महिला है रोसियो मोरियोnes, वो तो ये स्पेनिश से उर्दू से स्पेनिश में, उसको 2-3 उपन्यास भी प्रकाशित हो गए। वो मंतो का 1960 से पहले लगभग कोई किताब स्पेनिश से हिंदी में नहीं थी जो स्पेनिश से हिंदी में आई हो। उसके बाद प्रेमलता वर्मा हैं, एक कवित्री हैं और वो अभी अर्जेंटीना में रहती हैं। तो उन्होंने सेसार बायोको की कुछ पोएम्स का अनुवाद किया था। उनके पति पेरुवियन थे, वो यहाँ पर पेरुवियन एम्बेसी में थे, तो उनसे शादी की उन्होंने, तो दोनों ने मिलकर वो किया हुआ है। तो वो पहली किताब है जो स्पेनिश से हिंदी में आई है। और उसके बाद उन्होंने और किया, बहुत बाद में किया, एक उपन्यास भी उनका आया है। लेकिन उसके बाद पहली किताब वो स्पेनिश, ला विदा दे बुस्कोन, वो स्पेनिश से हिंदी में पहली किताब। उसके बाद संग्रह जो मैंने बताया ये आए हैं, नेरुदा का संग्रह आया है, अभी लोरका का संग्रह आ रहा है, एक संग्रह सेसार बायोको का जिसका आपने जिक्र किया है, पेरुवियन पोएट, बहुत बड़े पोएट हुए हैं, उनका भी एक संग्रह है हमने किया है। इस तरह की चीज़ें करता रहा हूँ और किया है। मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं। आप उत्तराखंड से हैं? हाँ? आप उत्तराखंड से? उत्तराखंड Are you from Uttarakhand? या Yeah, I'm also. I'm from Uttarakhand. अच्छा, I'm which from place? Almora. कहाँ से हो भाई? Almora district. हाँ? Almora. अल्मोड़ा से? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई। दोनों अल्मोड़ा से हो? हाँ. Thank you. बहुत अच्छा है। डॉक्टर ओस्कार को पता है? नहीं. क्योंकि ये तो पूरे इंसान को जानते ही हैं, इतने साल से यहाँ पर हैं। हाँ. तो ये है, इन्होंने कितना काम किया वो भी आप लोगों को पता है क्या? हाँ. संस्कृत का डिक्शनरी इन्होंने बनाया है अच्छा. ना, जो यहाँ वो है उपनिषद संस्कृत अभी शायद टू स्पेनिश। हाँ. तो अनुवाद के बारे में जो मैं एक चीज़ में और आपको मतलब अनुवाद करना तो आसान कहिए या मुश्किल जो भी है, लेकिन इसमें अनुवादकों को अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि आपको दूसरे कल्चर से
रूबरू करते हैं। तो और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक और मैं नाम यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। वीरप्पा मोइली कन्नड़ के एक बड़े पोइट हुए हैं, बड़े उपन्यासकार हुए हैं। उनका एक उपन्यास टेलवेर नाम से छपा हिंदी में, लेकिन न अनुवादक को उसमें बुलाया गया जब वो किताब रिलीज हुई, न अनुवादक को बुलाया गया, न राइटर को बुलाया गया, नेताजी को बुलाया गया। तो ये कल्चर हमारे यहाँ है जो अनुवादकों के लिए है। तो इस कल्चर को भी आप लोगों को बदलना है। आप लोग युवा लोग हैं, धीरे धीरे। मेरी पहली किताब जो मैं बता रहा हूँ, लोरका नहीं, पाब्लो नेरुदा का संग्रह, उसका जब लोकार्पण हुआ, उसका जब फंक्शन हुआ, तो मैं कहीं मंच पे नहीं था, मैं हॉल में जनता के साथ बैठा हुआ था, और मैंने जो अनुवाद किए थे वो कविताएं कोई और लेडी वहाँ पढ़ रही थी, यानी मुझे मेरे अनुवाद पढ़ने तक का मौका नहीं दिया गया। तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कि हम ये छोड़ दिया कि नहीं करते हैं कुछ ऐसा। ये तो ज़रूरी है, अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ता है। इसके अलावा मैं और आपसे क्या जिक्र करूं, तो मेरे पास कविताएं सुना सकता हूं, एक आध अच्छी कविता है जो आप चाहें तो सुनो। हिंदी और स्पेनिश में अगर स्पेनिश चाहते हैं तो स्पेनिश वर्जन भी इसमें है, कोई सुनाना चाहेगा? स्पेनिश आप पढ़िए, मैं हिंदी पढ़ूँ। दोनों दोनों। Hola a todos, me llamo Pradeep, soy estudiante de aquí, estoy en B1-3 con Aditya. Buen nivel. एक पोएम है कांसियोन ओटोनियाल। Canción otoñal. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copo de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda, y la garra de los años hace un sudario con ella. Se deshelara la nieve cuando muerte nos lleva, o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas. Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña. O nunca será posible la solución del problema. Y si el amor nos engaña, ¿quién la vida nos alienta?
si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien y quizá no exista, y del mal que late cerca. Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul en un incendio, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? O sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piernas, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrella, y todas las rosas son tan blancas como mi pena. ये हिंदी में पढ़ूँ क्या? पतझड़ का गीत। आज दिल में तारों सा धुंधला कंपन है, आज दिल में तारों सा धुंधला कंपन है, और धुंध की आत्मा में मेरा रास्ता भी खो गया। आज दिल में तारों सा धुंधला कंपन है, और धुंध की आत्मा में मेरा रास्ता भी खो गया। रोशनी मेरे पंख काटती है, और दुख की पीड़ा मेरी एक ख्याल के झरने में यादों को नम करती है। और धुंध की आत्मा में मेरा रास्ता भी खो गया। रोशनी मेरे पंख काटती है, और दुख की पीड़ा मेरी एक ख्याल के झरने में यादों को नम करती है। सभी गुलाब सफ़ेद हैं, सभी गुलाब सफ़ेद हैं, मेरे दर्द के मानिंद सफ़ेद। सभी गुलाब सफ़ेद हैं, मेरे दर्द के मानिंद सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद गुलाब वैसे नहीं। लेकिन सफ़ेद गुलाब वैसे नहीं जिन पर गिरी हो बर्फ़। लेकिन सफ़ेद गुलाब वैसे नहीं जिन पर गिरी हो बर्फ़। पहले वे इंद्रधनुष थे, आत्मा पर भी गिरती है बर्फ़। पहले वे इंद्रधनुष थे, आत्मा पर भी गिरती है बर्फ़। आत्मा की बर्फ़ पर चुंबनों के फाहे और नज़ारे जो हो गए छाया में विलीन, या जिनकी रोशनी पर सोचता है वो। आत्मा की बर्फ़ पर चुंबनों के फाहे और नज़ारे जो हो गए छाया में विलीन, या जिनकी रोशनी पर सोचता है वो। बर्फ़ गुलाबों से गिर रही है, बर्फ़ गुलाबों से गिर रही है, लेकिन टिकती है आत्मा पर। बर्फ़ गुलाबों से गिर रही है और टिकती है आत्मा पर, और वर्षों का शिकंजा बनाता है उन्हें कफन। और वर्षों का शिकंजा बनाता है उन्हें कफन। क्या बर्फ़ पिघलेगी मौत जब ले जाएगी हमें? क्या बर्फ़ पिघलेगी जब मौत ले जाएगी हमें? या और बर्फ़ पड़ेगी और होंगे दूसरे बेहतरीन गुलाब? या और बर्फ़ गिरेगी और होंगे दूसरे बेहतरीन गुलाब? हमारे बीच अमन चैन होगा क्या? हमारे बीच अमन चैन होगा क्या, जैसा कि सिखाता है ईसा मसीह? हमारे बीच अमन चैन होगा क्या, जैसे कि सिखाता है ईसा मसीह? या न कभी सुलझेगी हमारी ये समस्या? या न कभी सुलझेगी हमारी ये समस्या? और अगर प्रेम ही धोखा है, और अगर प्रेम ही धोखा है, तो जीवन कैसे रहेगा जीवंत? जीवन कैसे रहेगा जीवंत? गोधूली पर डुबो देती है अच्छाई के सच्चे विज्ञान में। गोधूली पर डुबो देती है अच्छाई के सच्चे विज्ञान में, जो शायद है भी कि नहीं। और बुराई में जो सुलगती है पड़ोस में ही, और बुराई में जो सुलगती है पड़ोस में ही। अगर आस की बुझ जाए, अगर आस ही बुझ जाए और बन जाए वो बेबीलोन, अगर आस ही बुझ जाए और बन जाए वो बेबीलोन, तो पृथ्वी के रास्तों को कौन सी मसाल करेगी रोशन? तो पृथ्वी के रास्तों को कौन सी मसाल करेगी रोशन? स्वप्न अगर नीला है तो मासूमियत का होगा क्या?
स्वप्न अगर नीला है तो मासूमियत का होगा क्या, होगा दिल का क्या जब प्यार में वो तीर तरकस ही नहीं, होगा प्यार का क्या जब जो प्यार में वो तीर तरकस ही नहीं। मौत अगर मौत भर है तो कवियों और सोई पड़ी चीज़ों का क्या जिसकी किसी को याद ही नहीं। मौत अगर मौत भर है तो कवियों का और सोई पड़ी चीज़ों का क्या जिसकी किसी को याद ही नहीं। उम्मीदों के सूरज, साफ पानी, नए चांद, बच्चों के दिलों, पत्थरों की खुरदरी आत्माओं, दिल में महसूस हो रहा है आज तारों का एक विचित्र कंपन, और सभी गुलाब इतने सफ़ेद जितना कि मेरा था, और सभी गुलाब इतने सफ़ेद कि जितना मेरा था। एक पोएम है। Muchas gracias. Vamos a terminar aquí con este poema en hindi. Sé que tenéis clase ahora. Muchas gracias por asistir y por favor tomen nota de nuestro gran traductor, poeta también, Ravati Nautiyal, para que puedan leer sus libros en hindi. Muchas gracias a todos.